In today's class, we will see about binomial nomenclature. Binomial nomenclature means कोई भी organism उसका हम नामकरण करते हैं ऐसा नाम which is universally accepted. Universally accepted means कोई भी system जो सब जगह all over country उसको उसी नाम से ही जाना जाए उसे बोला जाता है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इफ़ एनी ऑर्गेनिज्म इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम इन देयर लोकल लैंग्वेजेस एट डिफरेंट प्लेसेस इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ कन्फ्यूज़न. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस a system was accepted by IUCN in which all the organism obtained one particular biological name and that is known as universally accepted scientific name. For the scientific name there are two branches, ICBN and ICZN. ICBN means International Council of Botanical Nomenclature, or we can say International Code of Botanical Nomenclature, and ICZN means International Code of Zoological Nomenclature. बॉटनिकल नोमेनक्लेचर में सारे प्लांट्स का नाम रखा जाता है और जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर में सारे एनिमल्स का नाम रखा जाता है. अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द यूनिवर्सल नेम consist of two words. Two words were given to each organism and that is why this system is known as binomial system. This system was given by Linnaeus. Linnaeus was the main person who introduced the binomial system of nomenclature. In this case, the first word consists of जेनेरा और जीनस. जो हम पहला नाम रखते हैं दो शब्दों से मिलकर नाम दिया जाता है उसमें पहला शब्द जीनस को बिलोंग करता है. द फर्स्ट वर्ड कंसिस्ट ऑफ जीनस एंड द सेकेंड वर्ड कंसिस्ट ऑफ स्पीशीज़. सेकेंड वर्ड जो होता है वह स्पीशीज से लिया जाता है. जो भी वर्ड लिखे जाते हैं वो सारे लैटिन लैंग्वेज में लिए जाते हैं. लैटिन लैंग्वेज में हम इसलिए लेते हैं क्योंकि लैटिन लैंग्वेज इज़ अ डेड लैंग्वेज. डेड लैंग्वेज का मतलब होता है कि नाउ नो मोर चेंजेस विल बी डन इन दैट लैंग्वेज. जो वर्ड हमने जैसे लिए हैं वो अब वैसे ही रहेंगे एंड अलॉन्ग विथ टाइम देयर विल बी नो मॉडिफिकेशन इन दैट वर्ड. दैट इज़ वाई ऑल द वर्ड्स आर एक्सेप्टेड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज. Now the next rule regarding binomial system is that if we are typing the name then we have to write it in italics. हमें वो शब्द italics में लिखना पड़ेगा और अगर हम उसको हाथ से लिख रहे हैं if it is hand written then it should be underline. तो हम उसको underline करेंगे. Now let us take an example of an animal that is Panthera tigris. पैंथेरा टाइग्रिस में जो फर्स्ट वर्ड है वो जीनस का है पैंथेरा और जो सेकंड वर्ड हम लेते हैं वो बिलोंग करता है उसकी स्पीशीज़ को दैट इज़ टाइग्रिस. तो जब बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम लिखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जीनस नेम ऑलवेज बिगिंस विथ कैपिटल लेटर. जीनस नेम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है and then the species name always begins with small letter. This is the main thing which should be kept in mind while writing the scientific name. Then these names should have at least 3 or more than 3 alphabet and they should not exceed more than 20. ऐसा हम इसलिए करते हैं so that उनका 3 अल्फ़ाबेट से ज़्यादा शब्द होंगे तो वो जो वर्ड होगा वो हमें समझने में किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा. इट विल नॉट क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूज़न एंड 20 से ज़्यादा अल्फ़ाबेट ना होने पर इट विल बी ईजी फॉर अस टू रिमेंबर दिस.
Now one more change we can do in this binomial nomenclature is that if we want to write the name of scientist who discovered that name, then we can write it in short after the name of species. For example, the name of human being is Homo sapiens, where Homo is for genus, sapiens species, and after that we can write the name of scientist Linnaeus as Linn in short. One more system of classification is trinomial nomenclature. In trinomial nomenclature, we write three words. Three words means first name genus, second name species, and the third one is subspecies. For example, gorilla, gorilla, gorilla. In this case, when genus and species belongs to same word, जीनस और स्पीसीज़ दोनों सेम ही शब्द के होते हैं, दोनों यहाँ पर गोरिल्ला से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, देन सच वर्ड्स आर नोन एज टॉटोनिम्स. टॉटोनिम्स मीन्स अगर जीनस और स्पीशीज़ बोथ आर हैविंग द सेम टर्म, देन दे आर टॉटोनिम्स, and these tautonyms are not accepted in plants, they are accepted only and only in animals. Now further proceeding to the chapter, we should remember three different terms which are very important for studying. These terms are taxonomy, then systematics, then taxonomic categories. Let's understand them one by one. Taxonomy. Taxonomy means branch of science which deals with identification, nomenclature and classification of organism. ऐसी ब्रांच जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं, उसका नाम रखते हैं और उस नाम के हिसाब से उसको क्लासिफाई करते हैं. इसको समझने के लिए हम यूँ समझ सकते हैं कि टेक्सोनॉमी से हमें ये फ़ायदा है कि इफ़ वी आर गोइंग टू ए शॉपिंग मॉल टू परचेज सोप, देन बहुत बड़े मॉल में एक सोप ढूंढने के लिए हमें बहुत कन्फ्यूज़न होगा. तो उसके लिए वी विल सी द लिस्ट जहाँ पर डिफरेंट आइटम्स लगे हुए रहते हैं. एक हाउस होल्ड आइटम है, एक गारमेंट्स का आइटम है, एक स्टेशनरी का आइटम है. तो वी विल मूव टू हाउस होल्ड आइटम. उस हाउस होल्ड आइटम में भी अलग अलग कॉर्नर्स बने हुए होते हैं जहाँ पर हम बाथरूम रिक्वायरमेंट्स की तरफ मूव करेंगे. नाउ बाथरूम रिक्वायरमेंट में भी हम सोप्स की तरफ देखेंगे और सोप्स में भी बाथिंग सोप और वॉशिंग सोप में से हम बाथिंग सोप की तरफ मूव करेंगे. तो इस तरह से सेक्शन बनाने से हमें वो चीज़ ढूंढने में बहुत आसानी होती है. इसी तरह से टेक्सोनॉमी में हम इतने सारे ऑर्गेनिज्म, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म में से जिस ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं उसके लिए क्लासिफिकेशन के आधार पर हम हमारी जो रिसर्च है, जो स्टडी है, उसको बहुत ईजी बना सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मैमल्स की बात करते हैं तो मैमल्स बोलते ही हमारे माइंड में ह्यूमन बींग्स आते हैं. ह्यूमन बींग्स में हमने सारी बर्ड्स को ओमिट कर दिया, सारे एम्फीबियंस को ओमिट कर दिया, सारे फिशेस को ओमिट कर दिया और हमारे माइंड में एक इमेज बन जाती है कि मैमल्स है, दैट मीन्स एन ऑर्गेनिज्म विच इज़ हैविंग द मेमरी ग्लैंड, विच इज़ हैविंग द हेयर ऑन इट्स बॉडी, विच बिलोंग्स टू कॉर्डेटा. तो इस तरह से टेक्सोनॉमी की स्टडी हमारे लिए आगे जो फर्दर स्टडी है उसके लिए एक ईजी वे बना देती है. नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज़ सिस्टमैटिक. सिस्टमैटिक्स मीन्स जो भी ऑर्गेनिज्म हमने टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया है उनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना. दैट मीन्स it is the evolutionary relationship of all the organism with taxonomy, that is known as systematics. It was discovered by Linnaeus in his book Systema Naturae. Systema Naturae बुक में उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया कि जो भी टेक्सोनॉमी है उसका किसी भी ऑर्गेनिज्म के साथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या होता है. Then the third and the most important term which is used is categories. Categories word is also known as level
और रैंक और टैक्सन. दिस कैटेगरीज वर गिवन बाय लिनियस. सबसे पहले उन्होंने बताया कि कुछ कैटेगरीज रखी किसी भी ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के लिए, लाइक जीनस, स्पीशीज, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन वेराइटी. किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए ये 5 कैटेगरीज में उन्होंने रखा. लेटर ऑन वेराइटी वॉज ड्रॉप्ड. वैरायटी को ओमिट करके और उसकी जगह 3 फर्दर कैटेगरीज वर एडेड, किंगडम, देन फाइलम एंड देन फैमिली. तो इस तरह से हमारे पास जो टेक्सोनॉमिक हायरार्ची आई उसमें सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ all the categories were done, and this arrangement can be from smallest to largest or it can be largest to smallest. Now we will see the taxonomic hierarchy in a systematic order from biggest to smallest. The biggest is kingdom. जो हायरार्ची है उसमें सबसे टॉप मोस्ट लेवल पर हमारे पास किंगडम आता है और इसमें सबसे ज़्यादा मेंबर होने से ये बिगेस्ट ग्रुप बनाता है. किंगडम के नीचे वी प्लेस फाइलम. द वर्ड फाइलम इज़ यूज्ड फॉर एनिमल्स एंड फॉर प्लांट्स वी यूज़ डिवीज़न. बिलो द फाइलम क्लास इज़ प्लेस्ड, देन ऑर्डर, then family, then genus, and then the bottom most is species. species सबसे बॉटम में रहती है और लोअर मोस्ट पार्ट होती है किसी भी हायरार्ची में यदि हम किंगडम से चल रहे हैं. We can also move from species to kingdom, but for that one thing should be kept in mind, that smallest group of most closely related organism is species. जितने भी क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे हमें स्पीशीज़ में मिलेंगे. देन किंगडम इज़ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट डाइवर्स्ड ग्रुप. सारे जो एनिमल्स होते हैं वो डाइवर्स्ड होते हैं और ये लार्जेस्ट ग्रुप बनाता है टेक्सोनॉमिकल हायरार्ची में. फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इज़ नोन एज लिनियस.